Yes, Smitaji, we can start now. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupah Kada Mahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri-Yut-Pad-Kamalam Shri-Gurun Vaishnavamscha Shri-Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha He Krishna Karuna Sindho Deenabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatrubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratvishe Namaha Shikshakastak Cheto Darpanamarjanam Bhavamahadavagninirvapanam Sheyah Kairava Chandrika Vitaranam Vidyavadhu Jivanam Anandam Buddhivardhanam Pratipadam Purnamrita Swadanam Sarvatma Snapanam Param Vijayate Shri Krishna Sankirtanam Namnakari Bahuda Nij Sarva Shakti Tatrarpita Niyamitaha Smarnena Kalaha Etadrishi Tava Kripa Bhagavan Mamapi Durdaivam Midrisham Nihajanina Anuragaha Trinadapi Sunichena Tarorapi Shahishnuna Amanina Manudena Kirtaniya Sadahari Na dhanam na janam na sundarim Kavitam va Jagadish Kamaye Mam Janmani Janmani Ishware Bhavatad Bhakti Rahitu Ki Tvai Nanda Tanuja Kinkaram Patitam Mam Vishame Bhavambudau Kripaya Tava Pada Pankajasthita Duli Sadrisham Vichintaye Nayanam Galadashrudharaya Vadanam Gadagadaruddhaya Gira Pulkairnichitam Vapu Kada Tava Nama Grahane Bhavishyati Yugayitam Nimishena Chakshusha Pravashayitam Shunyayitam Jagat Sarvam Govinda Virahena Me Aslishyava Padaratam Pinashtumam Adarshanat Marmahatam Karotu Va Yatha Tatha Vavidadatu Lampato Mat Prananathastu Sa Eva Napara Mat Prananathastu Sa Eva Napara हम लोग
चैतन्य चरितामृत अध्याय 3 आदि 3 भगवान के अवतार के, भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के अवतार के बाह्य कारण जो है उसको हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। आदि 3 हमने पिछली बार 60 श्लोक तक पढ़े थे, अब उसके आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर भी थोड़े से श्लोक में फिर से रिपीट कर देती हूँ। चैतन्य लीला, भगवान श्री कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु बनकर के 550 साल पहले बंगाल में नदिया में अवतरित हुए थे, ये हमने पढ़ा। और भगवान चैतन्य महाप्रभु ने उनके जो जीवन काल है 48 ईयर्स, उसको 2 काल में डिवाइड किया गया, तो आदि लीला तथा शेष लीला। और इन दोनों लीलाओं में उनके अलग अलग 4 नाम हैं। और भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इस युग का धर्म हरि नाम संकीर्तन, इसका प्रचार किया था। व्यक्त करे भगवती कहे बार बार, कलियुग धर्मे नाम संकीर्तन सार। कलियुग का धर्म है भगवान के नाम का कीर्तन करना, संकीर्तन करना। और ये बात बार बार स्पष्ट रूप से श्रीमद् भागवत में हमको बताया गया है। कहते हैं, श्रीमद् भागवत के श्लोक लिए गए थे, इति द्वापर उर्वीश स्तुवन्ति जगदीश्वरम नाना तंत्र विधानेन कलावपि यथा शृणु, कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम सांगोपास्त्र पार्षदम यज्ञ ही संकीर्तनम प्राये यजंति ही सुमेधसः। भागवतम में ये श्लोक आता है, कह रहे कि कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति क्या करते हैं, वे उन ईश्वर के अवतार की पूजा करते हैं जो सामूहिक कीर्तन करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु आए, सामूहिक कीर्तन का पाथ जो है उन्होंने हमको दिखाया। और इसकी भविष्यवाणी कब हुई है? श्रीमद् भागवतम में। श्रीमद् भागवतम किसने लिखी है? व्यास देव ने। श्री कृष्ण कब आए थे? 5000 साल पहले, 5500 साल पहले। 5500 साल पहले भगवान श्री कृष्ण आए, फिर भगवान श्री कृष्ण चले गए धराधाम छोड़ करके। फिर नारद मुनि के सनकादि की चर्चा हुई है, उसमें से भागवत निकला, ठीक है ना, उसमें भागवत बोली गई। फिर उसके बाद व्यासदेव ने सुखदेव जी को दिया, फिर सुखदेव जी ने परीक्षित जी को दिया। परीक्षित जी वाज द सन ऑफ अर्जुन, ठीक, परीक्षित जी को दिया गया, सॉरी ग्रैंड सन ऑफ पांडवास। परीक्षित जी वाज द ग्रैंड सन ऑफ पांडवास, तो वहां पर गया, ठीक, तो वहां पर भागवत बोली गई। फिर वहां से फिर वापस से एक सत्र हुआ, सूत जी शौनक जी का 88,000 ऋषिस का नैमिषारण्य में, वहां पर भागवत बोली गई। तो उस भागवत में, ये कब से चल रही है? 5500 साल से तो हम लोग सोच रहे हैं, लेकिन चल तो उसके पहले से रही है। उन भागवत में युग में, हमारे युग में, जिस युग में हम जी रहे हैं, हम लोग कलयुग में जी रहे हैं, तो जिस युग में हम जी रहे हैं, हमारे युग की भविष्यवाणी उस पुराने भागवत में हो चुकी थी कि इस युग में भगवान आएंगे, गौरवर्ण रूप में आएंगे, सामूहिक कीर्तन का प्रचार प्रसार करेंगे। इस युग का धर्म ही यही है, बस भगवान का नाम लेना। क्योंकि जो लोग भागवत सुन रहे हैं वो जानते हैं कि हम कलयुगीय जीवों की क्या दशा है। बार बार भागवत में बताया गया, मंद बुद्धि होते हैं, आलस हमारे अंदर भर भर के है, और दिन भर परिवार की सेवा में लगी रहेंगे, रात को फिर सोते रहेंगे। तो इस पूरे दिनचर्या के बीच में कोई हमसे बोले कि तुम साधन करो, बड़ा मुश्किल है करना। लेकिन कोई कीर्तन करने को बोलते तो कीर्तन बड़ा आसान है। कीर्तन से तुरंत मन आपका जो है कंट्रोल में आ जाता है, कहीं यहाँ एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं। कीर्तन अपने आप मन को खींचता है। कैसे कि जैसे गाना, कहीं भी आप चलो, गाना गाते हैं, गाना सुनते हैं, तो गाना अपने आप अपने मन को उस तरफ खींच लेता है, ठीक है ना। लेकिन जब हम संसार के गाने सुनते हैं तो संसार के भाव उठते हैं, और हम भगवान के भजन सुनते हैं तो भगवान के प्रति भाव उठता है। इसीलिए ये संगीत और ये नृत्य
इतना आसान तरीका है, इसको भगवान में लगा दो बस। और भगवान के नाम तो वैसे ही पवित्र करने वाले हैं, तो शुद्ध स्वरूप में भगवान के नामों को अलग अलग धुन में गाते रहो, मन पवित्र होता जाएगा। एक्स्ट्रा कोई मेहनत करनी नहीं है, चलते फिरते हम गा सकते हैं। जब हम शिक्षक अष्टक पढ़ते हैं तो उसमें वही श्लोक मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कहते हैं, भगवान आपने तो अपने हर नाम में अपनी सारी शक्ति दे करके रखी है, और इतने दयालु हो गए प्रभु आप कि आपने कोई नियम नहीं रखा, किसी भी समय पे आप चैंटिंग कर सकते हो भगवान के नाम का। इतनी कृपा है प्रभु आपके ऊपर, हमारा ये दुर्दैव है, हम इसको समझ नहीं पाते, हम इस प्रोसेस को ले नहीं पाते, हम अपने दिमाग को लगाते रहते हैं। कठिन कठिन प्रोसेस हमको अच्छा लगता है, हमको लगता है वही करेंगे तो ही पाएंगे, ऐसा नहीं। तो भगवान खुद प्रकट हुए हैं और भगवान ने इस नाम संकीर्तन की महिमा का प्रचार किया है, और इसके बारे में ऑलरेडी भागवत में प्रोफेसी हो चुकी थी। जो भी श्लोक आपको सुनाया, ये भागवत के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय का 32वां श्लोक था कि कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के उन अवतार की पूजा करने के लिए सामूहिक कीर्तन करते हैं, जो कृष्ण नाम का निरंतर गान करते हैं। यद्यपि क्या देखो, यद्यपि उनका शरीर श्याम वर्ण का नहीं है, ये चैतन्य महाप्रभु के बारे में इंडिकेट कर रहा है, किंतु वे स्वयं कृष्ण हैं। उनके साथ उनके पार्षद, सेवक, आयुध तथा विश्वस्त संगी रहते हैं। ऑलरेडी ये बोला गया है। अब आगे, सुन भाई यही सब चैतन्य महिमा, यही श्लोक के कहे तार महिमार सीमा। कृष्ण यही दुई वर्ण सदा यार मुखे, अथवा कृष्ण के तीहो वर्णे निज सुखे। ये जो कह रहे हैं इस श्लोक में कि प्रिय भाइयों, कृपया करके श्री चैतन्य महाप्रभु की इन सारी महिमाओं को सुनो। ये श्लोक उनके कार्यकलाप तथा उनके लक्षणों के सार को प्रस्तुत करता है। कहते हैं उनका कार्यकलाप क्या, वो अपनी वाणी से सदैव कृष्ण 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 यही नाम वो जपते रहते हैं। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को देखो तो उनके मुख से क्या शब्द निकलता है, कृष्ण 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 कृष्ण। और यदि वो कृष्ण कृष्ण नहीं बोल रहे हैं, कुछ और बातें कर रहे हैं, तो कोई संसार की बातें नहीं करते। वो क्या करते हैं, हर्ष के साथ श्री कृष्ण का निरंतर वर्णन करते हैं, कृष्ण की लीलाओं का, कृष्ण के गुण का, कृष्ण के धाम का, उनके मुख से निरंतर वर्णन होता रहता है। कृष्ण वर्ण शब्देरथ दुईत प्रमाण, कृष्ण विनु तार मुखे नहीं ऐसे आन। कृष्ण वर्ण शब्द के यही दो अर्थ हैं। वस्तुतः कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कुछ भी उनके मुख से नहीं निकलता। इतना ये ऐसी जो बात कहते हैं ना, ये वृंदावन के संतों में मैंने देखा है, वो कुछ और बात करते ही नहीं है। जब मैं प्रेमानंद जी के यहाँ गई थी, तो वहां बिल्कुल भीड़ नहीं थी, बिल्कुल वो इतने पॉपुलर नहीं थे जितने अब यूट्यूब की वजह से डेली डेली आप लोग देख पाते हैं उनको। लेकिन मैं फर्स्ट टाइम गई थी तो कोई यूट्यूब नहीं था, कुछ नहीं था। और अभी तो खैर आश्रम प्रॉपर बन गया, तब आश्रम भी नहीं था, एक छोटा सा एक हॉल, छोटा सा जगह था मदन टेर, और वहां से वो वृंदावन महिमामृत सुना रहे थे। तो मेरी फ्रेंड ने बोला जा सुन के आ, तो मैं गई सुनने के लिए। तो इच्छा हुई ना कि अरे इतना अच्छा बोल रहे हैं, जाकर के इनको मिल सकते हैं क्या, इनसे बात कर सकते हैं क्या। तो वहां मना कर दिया, क्योंकि नहीं नहीं, ये अपने शिष्यों से केवल ये जो सुबह के समय है, ये जो वृंदावन महिमामृत का समय है, केवल उसी समय बात करते हैं, उसके बाद वो नहीं बात करते। शिष्य लोग भी अपने अपने भजन में लग जाते हैं, फालतू की वहां बकवास होती नहीं है। मैं तो दंग हो गई। ये एक संत, दूसरे एक संत है, वो तो बिल्कुल कोई जानता नहीं उनको, यूट्यूब पर भी नहीं है। और हम लोग जा रहे थे जयपुर की तरफ,
बीच रास्ते में इनका आश्रम नहीं था, घर था। तो ड्राइवर ने हमसे कहा, नहीं ड्राइवर ने नहीं, हम लोग कहीं पर रुके नाश्ते पे, तो वो लोग ने हमसे पूछा कहाँ जा रहे हो, तो हम कहे कि हम जयपुर जा रहे हैं, जयपुर में श्री कृष्ण का मंदिर देखने जा रहे हैं, वो दर्शन करके, और फिर हम लोग रिटर्न वृंदावन जा रहे। तो उन्होंने कहा यहाँ पर एक संत है, आप उनका जाके दर्शन करो। तो हम लोग गए, ढूंढते ढूंढते रात के ऑलमोस्ट 10:30-11 बज गए। तो वहां पर भी उन संत ने दर्शन तो दिया, लेकिन बहुत क्लैरिटी था उनका, संसार की इधर उधर की कोई बातें नहीं करना, यदि भगवान की बात करनी है तो करो, नहीं तो नहीं। सेम वे इन हिमालयस, मैं ऐसे संतों को मिली हूं, आप इधर उधर की बात कर ही नहीं सकते उनसे, वो आपके साथ समय बिताएंगे ही नहीं। वो मुझे देख करके मुझे इतना अच्छा लगा, ये अपने जीवन में उतारने जैसी बात है। फिर मैं महाराज जी के पास गई, महाराज जी ने राधा रस सुधा निधि का श्लोक सुना दिया मुझे। अलम विषय वार्ता घोर नरक सेवया, कि ये जो संसार की जो बातें हैं, ये अलम, ये वेस्ट हैं, सारी की सारी संसार की बातें, ये विषय वार्ता है, ये विष से आपको भरने वाली है, और ये नरक की तरफ आपको ढकेलने वाली है। मरने के बाद की नरक नहीं है, जीते जी का नरक। संसार में थोड़ी देर आप बैठ लो, थोड़ी देर तो बड़ा आनंद आएगा, सब आप कहते हैं पार्टी कर रहे हैं मस्त, जैसी पार्टी फिनिश, फिर सबको फोन, इसने ऐसी बात की, उसने वैसी बात की, उसका ऐसा देखा, तुमने वैसा देखा, गॉसिप पे गॉसिप, पीठ पीछे, और अंत में जब आपके कान में ये बात पड़ेगी तो आप दुखी हो जाते हो। तो जो सुख ले रहे थे संसार में, ऐसा एक केस नहीं, ऐसे तो हर केस मैंने देखे हैं, मेरे पास आते हैं तो पिताजी हम गए थे उसमें तो ऐसा हो गया, तो वैसा हो गया, तो मैं बोलती तो गए क्यों, जाना छोड़ दो। पहले लेसन नहीं मिला था, अब तुमको भगवत गीता का लेसन मिल रहा था, अब जाना छोड़ दो उस पार्टी में, वो तुम्हारे लिए नहीं बनी, पढ़ना ही नहीं है संसार की बातों में, जितना पढ़ोगे उतना दुख है। एक ही बात करना है बस, श्री कृष्ण की बात, सत्संग की बात, भगवान की बात। और आपको अलर्ट होना पड़ेगा। कई बार आप ऐसी कंपनी में फंस जाते हैं, रहते हैं, लेकिन उस समय पर भी आपको अलर्ट होना पड़ेगा कि आप भले सुनना पड़ रहा है, भले मजबूरी से उस महफिल में बैठना पड़ रहा है, लेकिन आपके अंदर भगवान की चैंटिंग शुरू हो जाए तेजी से, और किसी न किसी बहाने से वहां से निकल जाना। संसार की बातों में हमको नहीं पढ़ना है, हमारी बात केवल श्री कृष्ण की होनी चाहिए, सत्संग की होनी चाहिए, बस। तो आप देखिए, आपके अंदर इतना सुख का अनुभव आप करोगे कि पूछो मत, कोई झंझट ही नहीं, कोई संसार का झगड़ा झमेला ही नहीं, न झगड़ा न झांसा, एकांत वासा। एकांत क्या होता है? उस एक के साथ रहना। किसके साथ? जो हमारे हृदय में हमेशा रहता है। कौन रहता है हमारे हृदय में? भगवान श्री कृष्ण। बस, संसार का झगड़ा झमेला अब नहीं चाहिए। ठीक, तो यही यहाँ पर ये बता रहे, कृष्ण वर्ण शब्द ये ही अर्थ दुईत प्रमाण, कृष्ण बिनु तारा मुखे नहीं ऐसे आना। उनके मुख से, श्री चैतन्य महाप्रभु के मुख से और कोई शब्द नहीं निकलता। श्री कृष्ण, या तो श्री कृष्ण का नाम निकलता है, या तो श्री कृष्ण की कथाएं निकलती हैं। हम अपने जीवन में संकल्प उठा लें कि हमें श्री कृष्ण की कथाएं बोलनी है। अब आप देखो, आपने संकल्प ले लिया, अब श्री कृष्ण की कथाएं आप बोलेंगे कहाँ से? अगर तो आपको पढ़ना पड़ेगा, तो आप पढ़ने लगेंगे। कई बार पढ़ करके ऐसा लगे, अरे इतनी बुक है, कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े, कितना बैठ करेंगे, आएगा ही नहीं। तो क्या करना है? सीधे संतों की वाणी सुननी। बस, वो जब बोलते हैं संत लोग, उनकी वाणी ऐसी होती है, वो कान में जाती है, वो बैठ जाती है हृदय के अंदर, फिर आप बोलते रहेंगे सबको कहानी, हो गया जीवन सब। चलिए, के तारे बले यादे कृष्ण वरण, आर विशेषणे तार करे निवारण, देह कांते हयते हो अकृष्ण वरण, अकृष्णे वरणे कहे पीत वरण। कह रहे हैं कि कोई कृष्ण को केवल कृष्ण कहता है, तो वो उनको पूरी तरह से डिस्क्राइब नहीं कर रहे, क्योंकि कृष्ण का तो कोई ऐसा कोई रंग ही नहीं है। वो उनके शरीर की कांति निश्चित रूप से श्याम वर्ण नहीं है, वे श्याम नहीं है, इससे यह सूचित होता है उनका रंग पीला है।
ये जो मैंने श्याम वर्ण के ऊपर मैंने बहुत बार लोगों को एक्सप्लेन किया है, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। हम भगवान आए होंगे श्याम वर्ण में, मैं नहीं कहती, लेकिन भगवान को किसी एक वर्ण में हम बांध नहीं सकते। भगवान सर्वत्र फैले हुए हैं। तो जैसे आसमान, आसमान सर्वत्र फैला हुआ है। मेरे यहां देखेंगे तो नीला दिखाई देगा, आपके यहाँ देखेंगे तो शायद इस समय काला अंधेरा है तो काला दिखाई देगा। श्याम वर्ण, दोनों ही श्याम वर्ण है, नीला और मेघ श्याम। जैसे क्लाउडी, रात का जो क्लाउडी जो होता है कि बारिश गिरने जैसा रंग। तो ये भगवान मेरे यहाँ भी है, आपके यहाँ भी है। भगवान सर्वत्र फैले हुए हैं। तो जो भगवान सर्वत्र फैले हुए हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन उनका रंग ये आकाश के जैसे होगा। तो नीला है या काला है, लेकिन आकाश का कोई रंग है क्या? जब दोपहर होता है तो सन एकदम फुल उसके ऊपर रहता है, तो आकाश एकदम गोल्डन दिखाई देता है। शाम के समय पे लाल दिखाई देता है। तो आकाश का कोई रंग है क्या? हाँ, हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा दिख रहा है, तो हम ऐसे बोल रहे हैं श्याम वर्ण है, अरे मेघ वर्ण है, अरे गौर वर्ण है, अरे रक्त वर्ण है। हमें दिख रहा है आकाश ऐसा, लेकिन आकाश का कोई रंग नहीं है। कैसे उसके रंग को आप डिस्क्राइब करोगे? भगवान के रंग को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? कहते हैं भगवान को, जब भगवान के दर्शन होते हैं, करोड़ों करोड़ों सूर्य एक साथ उग जाए, उदित हो जाए, या करोड़ों करोड़ों चंद्रमा एक साथ उदित हो जाए, ऐसे तो भगवान का रंग है। और जो आप फील करते हो, आप कहेंगे करोड़ों से चंद्रमा उदित हो गए तो कितनी गर्मी होगी। अरे नहीं नहीं, इतनी गर्मी नहीं होती। करोड़ों सूर्य उदित हो जाए तो कितनी गर्मी होगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। करोड़ों चंद्र उदित हो जाए तो कितनी ठंडक होगी। इतनी ठंडक कि जन्म जन्मांतर करोड़ों जन्म में हमने जितने ताप लिए ना, दुख भरे, वो सारे तापों की शांति हो जाती है जब भगवान हृदय में उतर जाते हैं, जिस दिन भगवान का दर्शन हो जाता है। इतने ठंडे करोड़ों करोड़ों चंद्रमा जब उदित हो जाए, पूरे दिन भर गर्मी हो, तो रेगिस्तान में रहते हो आप, पूरे दिन भर गर्मी में तप रहे हो, तो जैसी शाम होती है, चांदनी जब पड़ती है अपने ऊपर ठंडी ठंडी, कितना अच्छा लगता है। जीव की यही दशा है, करोड़ों जन्मों में इतना तपा हुआ है, रेगिस्तान में घूमता रहा है ये हम सब, लेकिन जब भगवान की तरफ मुड़ते हैं, कृष्णचंद्र जब उदित होते हैं हमारे जीवन में, तब ऐसी ठंडक, ऐसी शांति, परम शांति हमारे जीवन में फिर जाकर के आती है। तो ऐसा, तो भगवान को किसी एक रंग में हम बांध नहीं सकते। फिर मैं जल का उदाहरण हमेशा देती हूँ। जल को आप दूर से देखते हो, समुद्र तो हर जगह है, पूरे विश्व, पूरे ग्लोब पर समुद्र है। कहीं वो हरा दिखाई देता है, कहीं वो काला दिखाई देता है, कहीं वो सफेद दिखाई देता है समुद्र, कहीं एकदम दही का रंग होगा, कहीं कहीं एकदम दूध का रंग होता है समुद्र का, कहीं एकदम काला, कहीं एकदम नीला। बट ऐसे दिखाई दे रहा है, प्रतीत हो रहा है। जब आप जाओगे समुद्र के पास, उस पानी को उठाओगे हाथ में, कोई रंग है क्या पानी का? पानी का कोई रंग नहीं। ऐसे ही भगवान सर्वत्र फैले हुए हैं, भगवान का कोई रंग में आप बांध नहीं सकते हो। हाँ, लेकिन उस जल को, वो समुद्र के जल को आप लेकर के एक कंटेनर में डाल दो, तो जो कंटेनर का, जो आपके बर्तन का शेप है, अगर बर्तन का शेप बंदर के जैसा है तो बंदर जैसा दिखेगा, उस शेप में चला गया। कंटेनर का शेप आपका चलो कृष्ण भगवान की मूर्ति की जैसा है, उसमें डाल दो, वैसा हो जाएगा। और इसको जाके फ्रिज में रख दो, फ्रिज में जब जाकर के आएगा तो बर्फ जैसे निकलेगा, तो वो शेप में निकलेगा। स्क्वायर शेप है तो स्क्वायर शेप है, कृष्ण का शेप है तो कृष्ण का शेप है, बंदर का शेप है तो बंदर का शेप है, राउंड शेप, आइस क्यूब ट्रे आपकी तो राउंड शेप है। जिस शेप में आप डालो, कुल्फी का शेप है तो कुल्फी का शेप है। जिस शेप में आपने, जिस ट्रे में आपने डाला उस पानी को और फ्रीजर से निकाला, वो कंडेंस होके उस शेप में आपके सामने आ गया, कंडेंस होके आ गया। जब पानी आप समुद्र से निकालने गए थे तो नीला था, पात्र में डाले तो कलरलेस था, पानी का कोई कलर था जब बर्तन में डाले तो कलरलेस था। हाँ, उसमें कोई रंग डाल दोगे आप और फिर फ्रीजर से निकालोगे तो उसमें तो एक कलर आ जाएगा। तो जो कलर आपने डाला, वो कलर
उस पानी ने ले लिया। तो भक्ति हमारी है ना, वो रंग है। भगवान जैसे जल सर्वत्र अवेलेबल है, ऐसे ही भगवान सर्वत्र हैं। भगवान को अपनी भक्ति भावना जो के कंटेनर में हमको उनको पकड़ना है और अपने भक्ति का रंग उसमें डालना है। जिस रंग में, जिस फॉर्म में हम उनको भज रहे हैं, भगवान उसी फॉर्म में हमारे लिए कंडेंस होके हमारे सामने आ जाते। सच्चिदानंद घन इस प्रकार बन करके, घनीभूत होकर के हमारे सामने प्रकट होते हैं। सच्चिदानंद भगवान का स्वरूप है, सच्चिदानंद, लेकिन भक्त उनको घनीभूत कर लेता है अपनी भावनाओं से। जैसे जल लेकर के आए और जल को आपने फ्रीजर में डाला, यही जल जब सूख जाता है तो आकाश में है कि नहीं? तब आप पकड़ सकते हो? नहीं पकड़ सकते हो, आकाश में ही है, निराकार रूप में। फिर जमीन पे देखते हो तो साकार रूप में। तो निराकार साकार, निराकार साकार दिखाई देता रहता है। तो भगवान के अलग अलग रूप है। भगवान को किसी एक रंग में हम बांध नहीं सकते। तो कोई कहता है कृष्ण वर्ण, कोई कहता है गौर वर्ण, हम कह रहे हैं, लेकिन भगवान का वर्ण तो कोई नहीं बोल सकता। चलिए, कलौ यम विद्वांसः स्फुटं बीजयन्ते द्युतिबरात् अकृष्णांगं कृष्णं मख विधिभिरुत्कीर्तनमयैः उपास्यं च प्राहुर्मखिल चतुर्थाश्रम जुषाम सदैव चैतन्याकृतिरतितरां न कृपयतु। कलयुग में पवित्र नाम के संकीर्तन यज्ञ द्वारा विद्वान लोग उन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं जो श्रीमती राधा रानी के तीव्र वेग के कारण अब अकृष्ण है। वे उन परमहंसों के एकमात्र आराध्य देव हैं जिन्होंने सन्यास की सर्वोच्च अवस्था प्राप्त कर ली है। ऐसे पूर्ण पुरुषोत्तम चैतन्य महाप्रभु हम पर अपनी अहेतुकी कृपा प्रदर्शित करें। प्रत्यक्ष ताहारा तप्त कांचे नर द्युति यहार छटाए नाशे अज्ञान तमस्तति। जीवे रे कलमश तमो नाश करी बारे अंग उपांग नाम नाना अस्त्र धरे भक्तिर विरोधी कर्म धर्म वा धर्म ताहारा कलमश नाम से महात्मा बहुत बाहुतुली हरि बल प्रेम दृष्टि ये चाय करिया कलमश नाशे प्रेमे ते भासाय। भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु की तरह। उनका रंग कैसा है? पिघले सोने की जैसा। पिघला सोना, पिघला सोना चमकता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु कलयुग में चमक रहे हैं। कलयुग में खूब कलिमल है, खूब कालिक है, खूब अंधकार है, खूब तमः है। कलयुग काला ही है, तमः प्रधान है, तमः गुण प्रधान है। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु पिघले सोने के रंग के जैसे प्रकट हुए हैं इस कलयुग के अज्ञान के अंधकार को दूर करने के लिए। जीव इस कलयुग में बड़ा पापमय हो गया है। उसके पाप का कारण क्या है? हम जब पाप करते हैं, पाप का कारण क्या है? अज्ञान। ज्ञान होगा तो हम पाप नहीं करेंगे, अज्ञान में पाप कर लेते हैं। तो अज्ञानता के वश हमारा जीवन पापमय हो गया। तो पाप से मुक्ति देनी है तो उसका अज्ञान मिटाना पड़ेगा। उस अज्ञान को नष्ट करने के लिए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। और पहले के युगों में देवी देवता प्रकट होते थे तो अस्त्र शस्त्र लेकर के प्रकट होते। दुर्गा सप्तशती पढ़ो तो पूरी देवी को सारे देवता अपने अपने अस्त्र देते हैं और देवी वो अस्त्र लेकर के जाकर के जो महिषासुर अज्ञानी असुर जितने हैं सबका वो नाश करती है। महिषासुर हो, चाहे रक्त बीज हो, चाहे भंडासुर हो, अलग अलग असुर लोगों का नाश किया। उस युग में चाहिए था। इस युग में, कलयुग में खास करके हमारे युग में ऐसा कोई उनको वॉर करने की जरूरत नहीं पड़ी। वो अपने अस्त्र शस्त्र लेके फिर भी आए। तो ये अस्त्र शस्त्र कौन थे भगवान चैतन्य महाप्रभु के? ये इनके पार्षद, इनके एसोसिएट्स, यही इनके अस्त्र थे। और उनके भक्त और उनका पवित्र नाम, यही उनका अस्त्र था। तो
लिख रहे हैं, जीवों का पापमय जीवन अज्ञान से उत्पन्न होता है। उस अज्ञान को नष्ट करने के लिए वे अनेक अस्त्र अपने साथ लाए हैं, यथा उनके पूर्णांश रूपी पार्षद, उनके भक्त तथा उनका पवित्र नाम। यही इनके अस्त्र हैं, 3 अस्त्र। आगे बोलते हैं, सबसे बड़े अज्ञान रूप वे धार्मिक या अधार्मिक क्रियाकलाप हैं जो भक्ति के विरोधी होते हैं। वे कल्मश अर्थात पाप कहलाते हैं। अपनी भुजाएं उठाकर पवित्र नाम का कीर्तन करते हुए और सबको गहन प्रेम से देखते हुए वे समस्त पापों को दूर कर देते हैं और भगवान के प्रेम से सबको अपलावित कर देते हैं। तो यहां पर कहा सबसे बड़ा ज्ञान रूप क्या है? वे धार्मिक ये आधार्मिक क्रिया कार्यकलाप है। जैसे हमारे यहाँ धर्म बहुत बड़ा है, इसको उसके सारांश को पकड़ना बड़ा मुश्किल है। जब हमने भागवत पढ़ी तो हमें समझ में आया कि जीव का सबसे बड़ा धर्म यह है कि वो भगवान को याद करे, अपने जीवन में वो भगवान को उतार ले। और जीव का सबसे बड़ा धर्म यह है भगवान की भक्ति करे। कैसी भक्ति करे? अहेतु की अप्रतिहता भक्ति करे। सबसे बड़ा धर्म क्या? भगवान की भक्ति करे अहेतु की। हेतु यानी सम गोल, सम डिजायर, अहेतु की नो डिजायर, निष्काम। और अप्रतिहता, अप्रतिहता मतलब जो भक्ति कभी रुकेगी नहीं, जो मरते दम तक चलेगी, ऐसी भक्ति। संसार में अलग अलग धर्म आए, अलग अलग देवी देवता प्रकट हुए, कई तो मैन्युफैक्चर्ड है और उनके भी विधियां निकल गई, उनके भी अनुष्ठान निकल गए। नॉर्मल लोग समझ नहीं पाते क्योंकि बुक्स पढ़ते नहीं, ना उतनी बुद्धि है कि समझ पाए बुक्स को, ना ऐसे कोई गुरु मिलते, गुरु लोग भी खूब घुमाते। तो वो जब आप पढ़ते हो उन स्क्रिप्चर्स को या ऐसे जो भी मिल जाते हैं आपको, वो ऐसी बातें करेंगे उन देवी देवताओं की, ऐसी ऐसी मतलब मेथड्स बताएंगे, मेथोडोलॉजी, रिचुअल्स, कि आपको बिल्कुल विश्वास हो जाएगा कि हाँ यही सही धर्म का रास्ता है। चलिए, आपका फेथ है, आपने उन रिचुअल्स को माना, आपने उन रिचुअल्स को किया। तो वो जो रिचुअल्स करवा रहे हैं वो क्यों करवा रहे हैं, ये क्वेश्चन उठता है पहले। आप भगवान को पाने के लिए कर रहे हैं कि अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कर रहे हैं? तंत्र में मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, ऐसे बहुत सारे गोल्स होते हैं करने के लिए साधना। और इसलिए बार बार वो बोलेंगे तंत्र में ना ये मंत्र गुप्त है, वो मंत्र गुप्त है, वो मंत्र गुप्त है। मैं सोचती थी गुप्त रहने के लिए क्या है इसके अंदर, क्यों गुप्त रख रहे हैं लोग इतना? मैं समझती हूँ कुछ मंत्रों को गुप्त रखना चाहिए, लेकिन ज्यादातर मंत्र इसलिए गुप्त रखे थे क्योंकि उनसे जो गोल वो अचीव कर रहे हैं, मारण, उच्चाटन, विद्वेषण, वशीकरण, ये पब्लिक में आप बता नहीं सकते हो किसी को। आप किसी के ऊपर, कई लोग कराते हैं, प्रयोग कराते हैं जाकर के, काला जादू, बंगाली तांत्रिक, ऐसे सब बहुत फेमस है इंडिया में। जाओ ट्रेन में तो खूब उनके एड दिखते हैं बंगाली तांत्रिकों के। तो उसमें आप जाते हो, वो बोलते हैं ये सब गुप्त है, किसी को बताना नहीं, चुपचाप रहना। क्यों बताओगे भाई? नहीं बता सकते हो क्योंकि आप किसी के ऊपर उच्चाटन करवा रहे हो, आप किसी के ऊपर मारने का प्रयोग करवा रहे हो। कैसे बताओगे पब्लिकली? गलत काम कर रहे हो इसलिए नहीं बता पा रहे हो। सही काम होगा तो कोई छुपाएगा क्या? तंत्र के सही रूप को दिखाओगे तब नहीं छुपाओगे, जब गलत काम करने तब छुपाना होता है सब कुछ। तो लग तो रहा है कि बड़ा धार्मिक काम कर रहे हो, आप भगवान का नाम जप रहे हो और नाम जप करके आप दूसरे में उच्चाटन करवा रहे हो। ये धार्मिक है या अधार्मिक है? भगवान का नाम जप रहे हो और दूसरे के ऊपर मारण प्रयोग करवा रहे हो, धार्मिक है या अधार्मिक? भगवान का नाम जप रहे हो और किसी के ऊपर वशीकरण प्रयोग करवा रहे हो, उसको नहीं आपसे जुड़ना है, आप वशीकरण प्रयोग करवा रहे हो। लग रहा है आपको कि आप धर्म कर रहे हो, आप भगवान का नाम ही ले रहे हो, भगवान के मंदिर में बैठे हो, ऐसे ऐसे प्रयोग करा रहे हो, गुप्त प्रयोग है, ऊंचे प्रयोग है, वाह वाह वाह, और काम कर रहे हो गलत।
तो ये अधार्मिक है, ये धर्म नहीं है। क्योंकि ये जो आपसे करवा, आप तो करने गए और वो भी आपको करा रहे हैं, और दोनों मिलकर के हाँ बिल्कुल हम लोग धार्मिक काम कर रहे हैं, दोनों को ऐसा लग रहा है, लेकिन उस धार्मिक कार्य से जो अधार्मिक कर्म आप कर रहे हो सकता है आपकी इच्छा आज पूरी हो जाए, लेकिन वो जो अधार्मिक कर्म आपने कर दिया, वो उसका जो फल आएगा ना, कई जन्मों तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, कई जन्मों तक नहीं पीछा छोड़ेगा। मैंने देखा है लोगों को तड़पते। हाँ, देवी के मंदिर बैठे, तंत्र के अच्छे अच्छे मंत्र हैं, शिव जी ने साक्षात दिए हैं मंत्र, उन मंत्रों को लेकर के आप भगवान को पाना चाहते हो, बहुत सरलता से पा जाओगे। आप ललिता त्रिपुर सुंदरी को पाना चाहते हो, बड़ी सरलता से, बड़े प्रेम से पा जाओगे। आप जिस भी देवी के फॉर्म को, तारा देवी को, काली देवी को, जिस फॉर्म को पाना चाहते हो पा जाओगे, लेकिन वो भक्ति के लिए, वो प्रेम के लिए, धर्म करते हुए, उस मंत्र को जपते हुए, अपने खुद के ग्रोथ के लिए, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, हमारे अंदर की आसुरी वृत्तियां जो है वो खत्म हो जाए और हम भगवान से हमेशा हमेशा के लिए जुड़ जाएं। हमने माँ माना, माँ हम आपके साथ हो जाएं। शिव जी हमने आपको गुरु माना, हमने आपको पिता माना, हम आपके साथ हो जाए। ऐसी जब भक्ति करते हैं तो वो तो ठीक है, लेकिन धर्म के नाम पे अधार्मिक कृत्य कर रहे हो तो वो ठीक नहीं है। तो यहाँ ये जो कह रहे हैं कि ये जो ऐसी वाली जो भक्ति हो रही है, जो सकाम भक्ति हो रही है, जिसमें लग तो रहा है कि सब सही चल रहा है, लेकिन ये सही नहीं हो रहा है, ये आपके लिए भी सही नहीं, दूसरे के लिए भी सही नहीं है, ये अज्ञान रूपी अधार्मिक भक्ति है। तो कह रहे हैं तो ऐसा जो अधार्मिक, जो धर्म भी हो रहा है कहने को, लेकिन अधर्म हो रहा है साथ साथ, ऐसे लोग जो इसका प्रचार प्रसार करते हैं, कहते हैं वो भक्ति के विरोधी होते हैं और वे कलमश अर्थात पाप कहलाते हैं। सीधी बात है ना, आपने भगवान का नाम लिया और आप किसी और के ऊपर उच्चाटन करा रहे हो, मारण करा रहे हो, आप क्या कर रहे हो? आप पाप ही कर रहे हो, आप पुण्य नहीं कर रहे हो, पाप हो रहा है, पाप। ऐसी वाली भक्ति नहीं करनी। इसीलिए हम कहते हैं निष्काम भक्ति हो जाए। भगवान आप जो मेरे लिए सही समझते हैं सही है। भगवान यदि मेरे अंदर ही महिषासुर है, महिष मतलब भैंस, भैंस बुद्धि, भगवान यदि मेरे अंदर ही भैंस बुद्धि है तो भगवान उसको आप समाप्त करो। हे दुर्गा माही मेरे अंदर की भैंस बुद्धि को समाप्त करो। रक्त बीज, काली काली जब प्रकट होती है तो रक्त बीज, आप लोगों ने दुर्गा सप्तशती पढ़ी होगी अभी, रक्त बीज का को मारती है, रक्ताब्ज उस असुर का नाम है। तो उसका एक रक्त भी अगर जमीन पे गिरेगा तो दूसरा रक्त फिर से आ जाएगा उसके, मतलब दूसरा असुर उसमें से फिर निकल जाएगा। इसलिए वो दिखाते काली को कि वो खप्पर लिए हाथ में और वो लपर लपर पिए जा रही है उसको, कि वो एक भी रक्त का बीज जमीन पर ना गिरे। जैसे ही वो जमीन पे गिरेगा तो नया असुर निकलेगा। तो काली ने पकड़ के रखा है खप्पर और वो रक्त बीज के रक्त को पूरा वो लिए जा रही है अंदर अंदर। ये कोई और रक्त बीज नहीं है बाहर का, वो रक्त बीज हमारे अंदर ही है। रक्त यानी रेड, रक्त का कलर ब्लड नहीं है, रक्त का कलर रेड है। और अगर ब्लड भी आप लेते हो तो ब्लड का कलर रेड, रेड कलर इंडिकेट्स रजोगुण। हमारे अंदर जब रजोगुण की बढ़ जाता है पूरी तरह से, हमारे अंदर वो रक्त बीज, रजोगुण का बीज जब बढ़ जाता है, रजोगुण बढ़ने से एम्बिशन, पैशन, फिर एक एक पार्टनर से दिल नहीं भरेगा और 10 पार्टनर दे दो उससे भी दिल नहीं भरेगा, धन थोड़े से धन से दिल नहीं भरेगा, एक गाड़ी से दिल नहीं भरेगा, एक घर से दिल नहीं भरेगा, बस चाहिए, बस वी आर पैशनेट, पागल की तरह भाग रहे हैं बस। और जब वो रजोगुण बढ़ता है ना खूब, रजोगुण की और तमोगुण की बहुत दोस्ती है, वो रक्त बीज जो, जब तमोगुण यानी वो धरती, वो उसके अंदर जब हो जाता है, तब रजोगुण और तमोगुण मिल गए, तब तो जीव का नाश। फिर शुरू हुई थी पैसा कमाने से, फिर पैसा कमाने के लिए ऐसी सर्कल मिल गई जहां ड्रिंक्स लिए जा रहे हैं, फिर आप ड्रिंक्स लेने शुरू करते, फिर बिकॉज दैट्स ओके, इट्स इन सोशल सर्कल नाउ। फिर ड्रिंक से, फिर वहां से नहीं, फिर और पैसा आ रहा है, और पैसा और पैसा आ रहा है, रजोगुण बढ़ता गया ना, फिर ड्रग्स तक चला जाएगा। अब उसके बारे में मुझे नहीं बोलना आप सबको पता है, इतना उसके ऊपर डाल के फायदा नहीं, बट वहां तक बात चली गई। रजोगुण से शुरू हुई, तमोगुण तक चली गई। जब वहां तक बात चली जाती है, ऐसे व्यक्ति को कौन बचाएगा?
हमारे अंदर ही ये सारे रजोगुण ये तमोगुण के बीज हैं। ये बीज हमारे अंदर नष्ट हो जाए तब काली का जो डिपिक्शन होता है तो वो ये रक्त बीज को मार रही है। रक्त बीज मतलब कोई बाहर का है, उसको किसी को मारा नहीं, वो हमारे अंदर जब हम काली मंत्र जपते हैं तो काली हमारे अंदर ही हमारे अंदर के रजोगुण को समाप्त करती है, तमोगुण को समाप्त करती है। काली का एक और नाम है कृष्णा। कृष्ण और कृष्णा दोनों भाई बहन है। जिस दिन वो रजोगुण तमोगुण हमारे अंदर का समाप्त हो जाता है, हम पवित्र हो जाते हैं, सत्वगुण बढ़ जाता है, वही काली हमारे लिए फिर कृष्णा बन जाती है, वही कात्यायनी बन जाती है। वही कात्यायनी जिसने गोपियों का हाथ पकड़ाया श्री कृष्ण के साथ, वही कात्यायनी वही काली फिर हमारा हाथ श्री कृष्ण के साथ पकड़ा देती है। लेकिन ये तो होता तब है जब हमारे अंदर के सारे रजोगुण सारे पाप वाले गुण जब समाप्त होते हैं। तो जब इस प्रकार से, जब आप चाहे आप तंत्र पकड़ो चाहे आप भक्ति पकड़ो, जब इतना क्लियर हो जाता है माइंड कि भगवान हमें इस रास्ते पे सही होना है, हमें अधर्म के मार्ग में नहीं चलना है, हमें पाप में जीवन नहीं जीना है, तो अहेतु की अप्रतिहता भक्ति आपकी चलती रहेगी। फिर भक्ति बाधित नहीं होती, फिर भक्ति बिल्कुल चलती है और आप एकदम एकदम एंड में भोग और मोक्ष जो भी उसका एंड गति वो आपको प्राप्त हो जाती है। लेकिन जब तक वो क्लैरिटी हमारे अंदर नहीं आएगी तब तक मुश्किल है। तो अलग अलग रास्ते बताए गए हमारे यहाँ। भक्ति का जो रास्ता जो चैतन्य महाप्रभु ने लाया, ये वेरी इजी रास्ता, इसमें हमको कोई टेंशन लेना ही नहीं है। हमें बस भगवान का नाम जपते रहना बस, और भगवान का कीर्तन करते रहना, भगवान की कथाएं करती रहनी। करते 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 ये कथा ये दवा के जैसे, मीठी दवा है, मीठी दवा, कड़वी दवा नहीं, मीठी दवा है, कान से जाती है हृदय में जाती है, हृदय में जाकर के बस मिठास 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 हमारे जीवन में भर देती है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे, मीठी दवा देने के लिए कलयुगी जीवों को, कि कंफ्यूज ना हो, ये यहाँ वहां भटके नहीं। बहुत धर्म के नाम पर खूब लूटे जाएंगे, बट कोई भगवान का नाम लेने लग जाए तो भगवान बचा लेते हैं। चलिए आगे के श्लोक जाते हैं। भगवान क्या करते हैं, चैतन्य महाप्रभु लिखते हैं, हाथ उठे उठा करके पवित्र नाम कीर्तन करते हुए सबको भगवान गहन प्रेम से देखते हैं और अपने नेत्रों से उनको प्रेम में आप्लावित कर देते हैं, डुबा देते हैं प्रेम में, और उन देखते ही भगवान सबके पापों को नष्ट कर देते हैं। और चैतन्य महाप्रभु कैसे दिखते हैं, कहते हैं स्मितलोका, मुस्कुराते हुए रहते हैं, मुस्कुराते हुए सबको देखते हैं। स्मितालोकः शोकं हरति जगतां यस्य परितो गिरां तु प्रारंभः कुशलपट्लिं पलवयति पदालंबः कं वा प्रणयति नहि प्रेम निवहं सदैव चैतन्याकृतिर्तितरां न कृपयतु। ये भगवान इतने प्रेम से देखते हैं, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमको हम पर अपनी अहेतु की कृपा की बरसात करें। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु अहेतु की कृपा की बरसात हम पर कर दे। उनका मुख कैसा है, कहते हैं मधुर मधुर मुस्कान, स्मित स्मितालोक, स्मित हास्य के साथ युक्त है, मीठी मीठी मुस्कान भगवान फैलाते रहें और अपनी मीठी मुस्कान युक्त दृष्टि से संसार के सारे शोकों को वो दूर कर देते हैं। और उनकी वाणी आहा भगवान श्री कृष्ण नाम का कीर्तन करती है और उनके हाथ ऊपर उठे हैं भगवान के कीर्तन में। कहते उनकी वाणी शुभ भक्ति लताओं को प्लवित कर जीवन प्रदान करती है। उनके चरण कमलों की शरण लेने से तुरंत ही दिव्य भगवत प्रेम का उदय हो जाता है। भगवान श्री जब चैतन्य महाप्रभु को जब आप याद करें, हम लोग अभी राधा रसोदा भी पढ़ते हैं तो पहला श्लोक ही ऐसा है, उसमें ऐसा भाव है, चैतन्य महाप्रभु हाथ उठा करके राधा रमण मंदिर के सामने वृंदावन में नृत्य कर रहे हैं, और नृत्य करते हैं तो ऐसा सब पार्षद वहां पर ढोल बज रहे हैं, मंजीरे बज रहे हैं, हरि बोल हरि बोल हरि बोल का नृत्य हो रहा है। और भगवान के अंदर जब हम देखते हैं, भगवान गोरे गोरे चमक रहे सोने जैसे, जितने सात्विक जो लक्षण है भक्ति के वो सब भगवान के अंदर प्रकट होते हैं, और उनके रोंगटे खड़े हो रहे हैं, कभी वो कांप रहे हैं, कभी वो रो रहे हैं। और जब रोते हैं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु तो पिचकारियों के जैसे उनके आंखों से आंसू निकलते हैं, और
रोते 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 पूरा उनका श्रीअंग भीग जाता है। वो आंसू निकलते निकलते श्रीअंग भींचते भींचते वृंदावन की रज को भिगा देता है। हम भगवान के फिर जब चरणों का दर्शन करते हैं तो वो उस वृंदावन की रज पर नृत्य करते हैं, उस भीगी हुई रज को हम अपने मस्तक पर धारण करते हैं। ऐसे भगवान कि वो प्रेम प्रेम संभले नहीं संभल रहा है उनके श्रीअंग में, तो प्रेम वो नेत्रों से छल 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 झलक रहा है, और जब वो नीचे गिरता है तो वो रज में फैलाया जा रहा है वो प्रेम वृंदावन की रज में, और सारे भक्त उस रज की प्रसादी को अपने माथे पर धारण करते हैं। केवल भगवान की वाणी, केवल भगवान का वो फॉर्म, चैतन्य महाप्रभु का भक्त वाला वो फॉर्म जो देखता है, बस उस भगवत प्रेम में वो डूब जाता है। उनकी वाणी जो सुनता है भगवत प्रेम में वो डूब जाता है। किसी भी अंग के उनका आप दर्शन कर लो, बस उसके अंदर से केवल भगवान का प्रेम निकल रहा है। ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, उनके चरण कमलों की शरण लेने से तुरंत ही भगवत प्रेम उदय हो जाता है, दिव्य भगवत प्रेम। जो कोई उनके शरीर या सुंदर मुख का दर्शन करता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और भगवत प्रेम रूपी संपत्ति को प्राप्त कर लेता है। इतना सरल कर दिया चैतन्य महाप्रभु ने। अन्य अवतारे सब सैन्य शस्त्र संगे, चैतन्य कृष्णेर सैन्य अंग उपांगे। अन्य अवतारों में भगवान, जैसे मैंने कहा ना, अन्य अवतार में खूब सेना लेकर के आ रहे हैं, अस्त्र वस्त्र लेकर के आ रहे हैं। इस अवतार में कोई सेना वगैरह नहीं है। उनकी सेना क्या है? उनके पार्षद, उनके भक्त और भगवान का नाम, यही उनका अस्त्र है। तो उनकी सेना उनके पूर्ण अंश तथा पार्षद है। आगे कहते हैं, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु शिव जी तथा ब्रह्मा जी समेत समस्त देवताओं के परम आराध्य हैं। ये देवता सामान्य मनुष्यों के वेश में उनके प्रति प्रेम प्रदर्शन करते हुए आए। वे अपने भक्तों को अपनी शुद्ध भक्ति का उपदेश देते हैं। क्या वे पुनः मेरे दृष्टिपथ पर विराजमान होंगे? आंगोपांग अस्त्र करे स्वकार्य साधन, अंग शब्देर अर्थ आरशुन दिया मन। अंग शब्दे अंश कहे शास्त्र प्रमाण, अंगेर अव्यय उपांग व्याख्यान। कह रहे कि जितने पार्षद हैं ये भगवान के अंश हैं। उनके पूर्ण अंश तथा पार्षद अपनी निजी विशेष कर्तव्य मानकर उनके अस्त्रों का कार्य करते हैं। कृपया मुझसे अंग शब्द का दूसरा अर्थ सुनो। प्रामाणिक शास्त्रों के प्रमाण के अनुसार शारीरिक अंग भी अंश कहलाता है और अंग के अंश को उपांग कहते हैं। नारायणस्त्वं नहि द सर्वदेहिनां, आत्मस्यधीशाखिल लोक साक्षी। नारायणो अंगनरभूजलायनात्, तच्चापि सत्यम न तवेव माया। हे प्रभुओं के प्रभु, आप सारी सृष्टि के दृष्टा हैं, आप हर एक के परम प्रिय प्राण हैं, तो इसलिए क्या आप मेरे पिता नारायण नहीं है? ये ब्रह्मा जी की स्तुति है। नारायण उसका सूचक है जिसका निवास नर से उत्पन्न जल में है, और वे नारायण आपके पूर्ण अंश हैं। आपके सारे पूर्ण अंश दिव्य हैं, वे परम पूर्ण हैं और माया द्वारा सृजित नहीं हैं। हर एक के हृदय में विद्यमान रहने वाले नारायण तथा जल, कारण, गर्भ और क्षीर में रहने वाले नारायण आपके ही पूर्ण अंश है। अतएव आप मूल नारायण हैं। अंग शब्द निश्चय ही पूर्ण अंश का सूचक है। ऐसे प्राकृतियों को कभी भी भौतिक प्रकृति की उपज नहीं माननी चाहिए, क्योंकि वे सभी दिव्य ज्ञान एवं आनंद से पूर्ण है। अद्वैत नित्यानंद चैतन्य रे दुई अंग, अंगेर अवयव गण कहिए उपांग। श्री अद्वैत प्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु दोनों ही चैतन्य महाप्रभु के पूर्ण अंश हैं। इस प्रकार वे उनके शरीर के अंग हैं। इन दोनों अंगों के अंश उपांग कहलाते हैं। तो भगवान तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बन के आए और उनके अंश हैं अद्वैत प्रभु और नित्यानंद। सब के सब पूर्ण हैं। 16 दल का कमल जैसे पूर्ण होता है,
अष्टदल कमल अपने आप में 8 पेटल्स ही है तो पूर्ण है। 12 दल का अगर कोई कमल है, भले उसके अंदर 12 पेटल है, 12 दल है उसके अंदर, फिर भी वो पूर्ण है। तो हर फूल, किसी में 5 ही पेटल्स हैं, वो अपने आप में पूर्ण है, किसी में 6 पेटल्स है, वो अपने आप में पूर्ण है। तो भगवान के ये जो अंश, जो पार्षद निकले आए हैं, चाहे नित्यानंद प्रभु हो, चाहे अद्वैत प्रभु हो, ये इनके भगवान के अंग हैं, और अंग के साथ साथ भगवान के अंश हैं। अंश का 2 अर्थ है, समझ में आया? जैसे ये मेरा हाथ मेरे शरीर का अंश है, लेकिन मेरा हाथ मेरा अंग भी है। तो अंश और अंग एक ही अर्थ हुआ। मेरे बच्चे मेरे शरीर का अंश है, तो इस शरीर के वो अंश है, उनके कोई अंश निकलेंगे तो वो उपांश हो गए। तो अंश के 2 अर्थ है, एक तो मेरा एक्सटेंशन, दूसरा मेरा अपना अंग, ये भी अंश का ही डेफिनेशन है, 2 अर्थ। तो ऐसे ये कह रहे हैं कि अद्वैत आचार्य और नित्यानंद प्रभु ये दिख 2 रहे हैं, तो ये भगवान का एक्सपांशन है। जैसे मेरा बच्चा मेरा एक्सपांशन है, ऐसे ही ये दोनों भगवान के एक्सपांशन है। मेरा बच्चा मेरा अंश है, ऐसे ही ये 2 भगवान के अंश हैं। समझ में आई? और मेरा अंग, ये भी मेरा अंश है। तो नित्यानंद महाप्रभु और अद्वैत प्रभु ये दोनों भगवान के अंग भी हैं, एक राइट हैंड है, एक लेफ्ट हैंड है। तो इनके भी जो अंश निकले वो आगे चल के वो उपांश, मतलब अंश के अंश को कहते हैं उपांश, बट हैं सारे के सारे भगवान के ही, भगवान श्री कृष्ण के ही एक्सपेंशन, भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के ही वो एक्सपेंशन। ठीक है, अरे ओ समय हो गया, अभी देखा मैंने। चलो ये 2 श्लोक पढ़ करके एंड करती हूँ। अंगोपांग तीक्ष्ण अस्त्र प्रभु रसहिते सेयब अस्त्र हय पाषांड दलिते। इस तरह भगवान अपने अंगों तथा उपांगों रूपी तीक्ष्ण अस्त्रों से सुसज्जित हैं। ये सारे अस्त्र यानी भगवान के पार्षद श्रद्धा विहीन नास्तिकों का दलन करने में सक्षम है। श्री नित्यानंद गोसाई साक्षात हलधर भगवान बलराम है और अद्वैत आचार्य साक्षात ईश्वर हैं। ये दोनों पति, दोनों सेनापति श्रीवास ठाकुर जैसे अपने सैनिकों के साथ पवित्र भगवान नाम कीर्तन करते हुए सर्वत्र विचरण करते रहते हैं। चलिए ये श्लोक नंबर 75 पे आज हम लोग एंड करते हैं, बाकी की क्लास कल करते हैं। जय श्री कृष्णा, हरि बोल। प्रश्न होगा मुझे लिख देना, क्लास में ले लूंगी। हरि बोल।